اگر ہم پچھلے 200 سال کا جائزہ لیں تو لاسٹ 2 سینچریز کے اندر دنیا کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. جب 19 سینچری کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت دنیا کی آبادی لگ بھگ کوئی 1 ارب کے قریب تھی، لیکن پھر گزشتہ 2 صدیوں کے اندر یہ آبادی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اب تقریباً 8 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کا وسائل کے اوپر بے پناہ اثر ہے. اس آبادی کو اب مینیج کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ اب ملکوں کے پاس موجود نہیں ہیں یا ان کی کمی ہے. تو تمام ممالک اپنے ملکوں میں موجود لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب ایک دوسرے پر ڈپینڈ لازمی طور کے اوپر کرتے ہیں. کوئی بھی ملک مکمل طور سے تمام معاملات میں سیلف سفیشینٹ نہیں رہا ہے. ہر ملک کو دوسرے ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی ملک اگر ایگریکلچر میں بہتر ہے تو دوسرا ملک ٹیکنالوجی میں بہتر ہے، تو کوئی اور ملک سروس انڈسٹری میں بہتر ہے، تو کوئی اور ملک مائننگ میں بہتر ہے. ہر ملک کی اپنی اپنی کچھ صلاحیتیں ہیں، تو اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. جب ایک ملک دوسرے ملک کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، مطلب کہ اگر پاکستان کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ ان چیزوں کو امریکہ، جاپان، برطانیہ، سعودی عرب، انڈیا، آسٹریلیا وغیرہ سے منگواتا ہے تو یہ 2 ملکوں کی ٹریڈ بن جاتی ہے. اور بالکل اسی طریقے سے جب دوسرے ملکوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پاکستان میں وافر تک مقدار میں موجود ہے، مثال کے طور کے اوپر پاکستان میں کاٹن، لیدر، ویٹ، شوگر، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں بڑی مقدار میں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں لائک رائس اور را مٹیریلز وغیرہ. تو ان چیزوں کے لیے دوسرا ملک پاکستان کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ پاکستان سے ان چیزوں کو منگواتا ہے. تو پاکستان کا دوسرے ملکوں سے چیزیں منگوانا یا پھر پاکستان کا دوسرے ملکوں کو چیزیں بھیجنا، یہ ایک ٹریڈ ہے، اور یہ ٹریڈ انٹرنیشنل ٹریڈ کہلاتی ہے، یعنی بین الاقوامی تجارت. بین الاقوامی تجارت اب تمام ملکوں کی آپس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اب ملک آپ سروائیو نہیں کر سکتے. ہمیں اب ایک دوسرے کی ایکسپرٹی سے فائدہ اٹھانا ہی ہوگا. انٹرنیشنل ٹریڈ میں جب سامان دوسرے ملک سے منگوایا جاتا ہے ایک ملک کے اندر تو اس کو امپورٹ یعنی درآمدات کہتے ہیں، اور جب یہ ایک ملک دوسرے ملک کو بھیجتا ہے تو اس کو برآمدات یعنی ایکسپورٹ کہتے ہیں. اور یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ مل کر انٹرنیشنل ٹریڈ بن جاتی ہے. آج کی اس جدید دنیا میں ایک ملک کے طاقتور ہونے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ ملک انٹرنیشنل ٹریڈ میں کتنا زیادہ منسلک ہے، کتنا زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈ سے وابستہ ہے. ایک ملک کی جتنی انٹرنیشنل ٹریڈ زیادہ ہوتی ہے آج کی دنیا میں اس ملک کو اتنا ہی زیادہ طاقتور ملک تصور کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ کے اضافے کی وجہ سے ایک طرف ملک کی سیاسی سچویشن بہتر ہوتی ہے، دوسری طرف ملک کے معاشی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی $20 بلین کا سامان ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. لاسٹ ایئر پاکستان سے کوئی ایگزیکٹلی $23 بلین کا سامان ایکسپورٹ کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے ملکوں سے تقریباً کوئی $50 بلین کا سامان منگوایا گیا. تو پاکستان کی یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس کا کل حجم $73 بلین کا بنتا ہے. اگر یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا حجم جو کہ اس وقت $73 بلین ہے یہ بڑھے اور یہ بڑھ کر 100، 200، 300، $400 بلین تک پہنچ جائے تو اس سے ملک کی معاشی حالات بہتر ہوں گے، ملک میں نئے کارخانے لگیں گے، ملازمتوں میں اضافہ ہوگا، ٹیکنالوجی کا لیول بہتر ہوگا، ملک میں دستیاب وسائل کا بہتر استعمال ہوگا، عوام کی زیادہ سے زیادہ فلاح ہو سکے گی، تعلیم اور صحت کے اوپر زیادہ خرچ کیا جا سکے گا. تو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کا اب ایک اہم رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اندرونی معاشی حالات کے اندر.
इसके अलावा इसी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क से अपने मामलात को तय भी करता है, क्योंकि जिस मुल्क की इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होती है वो दूसरे मुल्कों से ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपने मामलात को सुलझा सकता है, बार्गेन कर सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड अब मुल्कों की अहम ज़रूरत बन चुकी है। इंटरनेशनल ट्रेड के वो क्या एडवांटेजेस हैं एग्जैक्टली, अब उनको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। पहला एडवांटेज है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर किसी भी किस्म की मुल्क में शॉर्टेज है, कोई कमी है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मटेरियल है लाइक शुगर है, कॉटन है, या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है या कोई सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर उसकी कमी हो गई है तो वो दूसरे ऐसे मुल्क से बआसानी मंगवाई जा सकती है जहां पर वो चीज़ मौजूद है। तो इससे मुल्क में मौजूद डिमांड और सप्लाई के गैप को कम किया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो भी शॉर्टेजेस होती हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। सिंस नो कंट्री अराउंड द ग्लोब इज सेल्फ सफिशिएंट, अब कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हैंस फेसेस अ शॉर्टेज और लैक ऑफ सर्टेन गुड्स, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है, कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है। और ये कमी सिर्फ अशिया में ही नहीं होती बल्कि सर्विसेज में भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है या लॉयर्स की ज़रूरत है या आपको और ट्रेंड इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो ये भी दूसरे मुल्कों से अपनी ज़रूरत के मुताबिक मंगवाए जा सकते हैं। इसी तरीके से एक और इंटरनेशनल ट्रेड का फ़ायदा है और वो है रिडक्शन इन प्राइसेस। रिडक्शन इन प्राइसेस से मुराद है कि कीमतों को कम किया जा सकता है। अगर मुल्क में किसी भी वजह से कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है और उस इजाफे को अगर कम करना मकसूद है तो उसकी सप्लाई बढ़ाई जाएगी। लेकिन वो सप्लाई किस तरह से बढ़ाई जाएगी, मुल्क में तो शॉर्टेज है, तो वो सप्लाई बढ़ाने के लिए फिर दूसरे मुल्कों से राब्ता किया जाता है और वहाँ से उसको मंगवा कर मुल्क में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे सप्लाई बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ गुड्स कॉजेज द राइज इन द प्राइस क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर द कंज्यूमर। जब कोई भी चीज़ की कमी हो जाए, किल्लत हो जाए मुल्क में किसी चीज़ की, तो उसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कस्टमर को इससे तकलीफ होती है। इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग मेकिंग द लाइफ मिजरेबल फॉर ए कॉमन मैन। एक जो आम इंसान है उसकी लाइफ में मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। When the nations have no way out to overcome the shortage, they resort to import. और अगर मुल्क के पास और कोई रास्ता ना हो तो फिर आसान रास्ता होता है इंपोर्ट करना, दरामदाद करना, दूसरे मुल्कों से फिर हम सामान मंगाकर अपने मुल्क में डिमांड और सप्लाई के मामले को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड का एक और फायदा जो है वो है कंपटीशन और क्वालिटी। जब दूसरे मुल्क से सामान आना शुरू होता है तो उससे मुल्क में मौजूद मैन्युफैक्चरर्स को एक कंपटीशन का एहसास होता है, मुकाबले की फिजा बन जाती है। तो अब अगर मुल्क के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको अगर अपनी बका चाहिए है, वो अगर अपने कारोबार को चलते रहने देना चाहते हैं, तो उनको फिर कम्पीट करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा और मुकाबले की वजह से फिर वो अपनी क्वालिटी को बेहतर करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से मुल्क में मौजूद जो अशिया हैं उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है और नई चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम इनोवेशन कहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस, दो मुल्क आपस में ट्रेड अपने आपस के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए भी करते हैं। Friendship among the countries, treaties, and economic blocks allow opening borders of exchange of goods among them. जो मुल्कों की आपस की दोस्तियां हैं, इनकी वजह से फिर आपस में नए नए मुआहदे किए जाते हैं, इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और इन इकोनॉमिक ब्लॉक्स की वजह से जो बॉर्डर्स हैं वो सामान के लिए खोल दिए जाते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। Sometimes the foreign trade relations bring the exporting country under the pressure of importing country, which could elicit certain political and otherwise gain from the former. और ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इसकी वजह से भी एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर असर पड़ता है और इससे भी मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल फ़ायदे भी उठाए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का एक और बहुत ही अहम फ़ायदा और वो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग।
ज़र मुबादला। ये ज़र मुबादला क्या चीज़ है? तो ज़र मुबादला दूसरे मुल्क की करेंसी को कहते हैं। लाइक अमेरिका का डॉलर पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज है। इसी तरीके से चाइना का युआन, इंग्लैंड का पाउंड या यूरोप में चलने वाला यूरो, ये वो करेंसीज हैं जो दूसरे मुल्क की हैं और फॉरेन करेंसीज हैं, इसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। दुनिया के तमाम ममालिक की अपनी करेंसीज हैं, लेकिन हर करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी होने का दर्जा हासिल नहीं है। दुनिया में चंद ही करेंसीज हैं जो इंटरनेशनल करेंसी कहलाती हैं। मिसाल के तौर के पर अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पौंड, यूरो, ये वो करेंसीज हैं जिनको इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा हासिल है। मतलब इंटरनेशनल करेंसी से मुराद ये है कि जब दो मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं तो कौन सी करेंसी इख्तियार की जाए। मिसाल के तौर के ऊपर अगर अब पाकिस्तान सऊदी अरब से कोई चीज़ खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, तो पाकिस्तान को फिर पेट्रोल की अदायगी करनी होगी। तो ये अदायगी किस शक्ल में की जाए? अगर पाकिस्तान जो है अदायगी पाकिस्तानी रुपये की शक्ल में करता है, तो सऊदी अरब वो लेने से इनकार कर देगा, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी जब उसको मिलेगी, तो वो उस करेंसी से कोई और चीज़ नहीं खरीद पाएगा सिवाय पाकिस्तान के ही। तो इसको एक ऐसी चीज़ चाहिए है सऊदी अरब को कि जो वो लेकर दूसरे मुल्कों से भी चीज़ें खरीद सके। तो सऊदी अरब की डिमांड ये होगी कि पाकिस्तान एक ऐसी करेंसी में पेमेंट करे जिसको लेकर वो दूसरे मुल्कों से भी सामान को खरीद सके। यही वजह है कि पाकिस्तान को फिर सऊदी अरब को पेमेंट करने के लिए डॉलर दरकार होगा, और ये डॉलर अब पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज बन जाएगा। तो अब ये डॉलर फिर पाकिस्तान के पास कहाँ से आएगा? पाकिस्तान इस डॉलर को ओपन मार्केट से खरीद नहीं सकता है। तो इसको फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि पाकिस्तान अमेरिका को या दूसरे मुल्कों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करे, बरामदात करे। तो जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा तो बदले में डॉलर उनसे लेगा। जब ये डॉलर पाकिस्तान को मिलेगा तो पाकिस्तान इसी डॉलर को इस्तेमाल करके फिर सऊदी अरब से पेट्रोल खरीद सकता है। तो सऊदी अरब को अदायगी वो आराम से पेट्रोल में कर सकेगा। तो एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को हासिल करने का एक अहम तरीन जरिया बन जाता है। फॉरेन एक्सचेंज और भी दूसरे रास्तों से हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो अहम रास्ता है वो है एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज को हासिल करना। एक और फायदा जो इंटरनेशनल ट्रेड का उठाया जा सकता है वो है आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। मुल्कों के आपस के ताल्लुकात यकीनन डिपेंड करते हैं इस बात पर कि मुल्क की माशी हालत कैसी है। तो एक मुल्क की माशी हालत का दूसरे मुल्क से ताल्लुकात से बराह रास्त ताल्लुक होता है। अगर एक मुल्क का इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा है तो उससे मुल्क की जो तस्वीर है वो दूसरे मुल्कों में एक अच्छी बनी हुई होगी, और वो दूसरे मुल्क के लोग फिर उसी बिना के ऊपर, उसी बेस के ऊपर फिर उस मुल्क से अपने ताल्लुकात को कायम करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर इस वक्त देखा जाए तो चाइना की चूंकि एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और उसने दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट के मामला भी बहुत अच्छे रखे हुए हैं, बड़ी मिकदार में वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यही वजह है कि बहुत सारे ममालिक उससे अब अपने ताल्लुकात बेहतर रखना चाहेंगे। यही मामला अमेरिका के साथ होगा। अमेरिका दुनिया की इस वक्त भी एक सबसे बड़ी जाइंट मईशत है, क्योंकि इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लेवल जो हैं वो दूसरे मुल्कों के साथ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से फिर तमाम ममालिक जो हैं वो फिर इन ममालिक के साथ कि जिनकी इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा है, अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहते हैं, और ये मुल्क फिर उन मुल्कों में एक अच्छे अंदाज से जाने जाते हैं।